Good morning, students. I'm Shashi and I'm with you with the explanation of the poem Birdie, Will You My Pet? And this is written by William Ellingham. William Ellingham. In this lecture, we'll know about the author, about the poet, and we'll know about the introduction of the poem, explanation of stanzas, difficult word meanings, and about some literary devices used in the poem. So first we talk about the poet. William Ellingham was born on 19 March 1824 in the little port of Ballyshannon, County Donegal, Ireland. He produced excellent lyrical and descriptive poetry, and the best of his pieces are thoroughly national in spirit. He published poems in 1850, followed by Day and Night Songs, a volume containing many charming lyrics. In 1855, his verse is clear, fresh, and graceful. So, what is told in this that William Ellingham was born on 19 March 1824 and he produced excellent poem. बहुत अच्छी lyrical poems he produce करते थे और ये अपनी पोइम डे एंड नाइट सॉन्ग्स के लिए बहुत फेमस हुए थे जो कि 1850 में पब्लिश्ड हुई थी। और इनकी जो पोइम्स थी, इनकी जो वर्ड्स मीन्स पोइम, इनकी जो पोइम सॉन्ग्स होते थे, poems are very clear, fresh and graceful. Okay, other works are 50 modern poems published in 1865, songs, poems and ballads 1877, and Evil May Day 1883, Blackberries 1884, and his most famous work, The Fairies. Here we start the explanation of poem. If asked to choose between money and freedom, what would you choose and why? यदि मनी और फ्रीडम में से आपको किसी एक को चूज़ करना पड़े तो आप किसे चूज़ करेंगे और क्यों? Think about it. And can you think a few things that come with freedom and cannot be bought with money? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप फ्रीडम के साथ होती हैं पर मनी से आप उन्हें नहीं ले सकते हो? So think about it also. So this poem is about a pet or a bird, and this little girl, she wants this bird to be a pet. वो इस बर्ड को अपना पेट बनाना चाहती है और उसको पेट बनाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें उसे कहती है, बहुत उसे टेम्प्ट करती है उसको पेट बनाने के लिए. But let's see what will be the answer of the bird. So child says, this is a conversational poem. ये conversational poem है. First child conversation, then bird conversation. So इस तरह से ये poem चलेगी. Then the child said, birdie, birdie, will you pat? Summertime is far away yet. You will have silken quilts and a velvet bed and a pillow of satin of your head. So first of all, child says that birdie, birdie, will you pat? कि birdie, bird को वो प्यार से birdie कहती है उसको थोड़ा रिझाने के लिए. So वो उसको बोलती है birdie, birdie, क्या तुम मेरी पेट बनोगी? Summer time is far away yet, कि अभी तो समर का टाइम बहुत दूर है. Far away yet means अभी समर का समय बहुत दूर है. You'll have silken quilts. Quilts means blanket, and velvet means a soft cloth. Velvet means a soft cloth. So she told her that she'll give her silken quilts, कि वो उसको silken quilts यानी कि सिल्क का ब्लैंकेट उसको देगी, and
अ वेलवेट बेड, और एक ऐसा बेड देगी जो कि वेलवेट का है। वेलवेट मीन्स अ सॉफ्ट क्लॉथ, एक सॉफ्ट क्लॉथ का बना हुआ है। एंड अ पिलो ऑफ सैटिन, satin is also a type of cloth that is very soft and smooth for your head, और satin का पिलो उसको उसके बेड पर देगी। ओके, सो दिस इज द tempting sentence for the bird. Then bird said, I would rather sleep in the ivy wall. Ivy is the name of flower. So no rain comes through though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away. So what will be the answer of the bird? Bird का क्या आंसर है? Bird कहती है कि मैं आईवी वॉल, यानी वो वॉल जिस पे आईवी फ्लावर जो है उसकी बेल गई हुई है, सो मैं उसकी वॉल पर ही वहीं पर ही मैं सो जाऊंगी तुम्हारे वेलवेट बेड के अलावा। नो रेन कम्स थ्रू, ठीक है, वहाँ पर मेरा नेस्ट है और वहाँ पर कोई भी रेन नहीं आती है, यानी बारिश आती है तो मेरा जो नेस्ट है वो गीला नहीं होता, वो भीगता नहीं है। दो आई हियर इट फॉल, जबकि मैं बारिश के गिरने की आवाज़ सुन सकती हूँ। द सन पीप्स गे एट डॉन ऑफ डे एंड आई सिंग एंड विंग अवे। अब बर्ड कहती है कि जब सनलाइट अपीयर होती है तो वो मुझे बताती है कि दिन निकल आया है। एंड आई सिंग, और मैं सनलाइट को देखकर सिंग करना शुरू कर देती हूँ, गाना शुरू कर देती हूँ, मीन्स चॉपिंग शुरू कर देती हूँ, चहचहाना। एंड विंग अवे, विंग का मतलब है यहाँ पे फ्लाई, और मैं दूर दूर तक उड़ आती हूँ, ठीक है। सो हियर सम poetic devices are used. We'll talk about it. So here you can see, first we'll see the rhyming scheme. So here you can see pat, yet, both have same musical effect, and bad, had, both have same musical effect. So we'll give it A, and here B. So its rhyming scheme is A, B. Okay, then in the here, yes, you can see birdie word is repeated choice, so repetition is here in this line. Repetition is a figure of speech, or we can say poetic device to it. Poetic device भी हम इसको कहते हैं और figure of speech भी कहते हैं, तो यहाँ पर repetition यूज़ हुआ है। Then in the next stanza, यहाँ पर हम देखेंगे in the second line, दो तो, so the and the, th, the and the sound is repeated. So when a sound is repeated, then there is alliteration. So यहाँ पर alliteration यूज़ हुआ है। अब नीचे आप देखें नेक्स्ट लाइन में गे एंड डे, here a is the sound that is also repeated, so here assonance is used. Then you can see here sing, wing, ing sound is repeated, so here also assonance. And you can say here sun peeps होता है, peeps means looks into, or we can say झांकना, but sun cannot peep, sun झांक नहीं सकता, sun peep नहीं कर सकता, जब उसकी sunlight आती है उसको इसने रेफर किया है कि sun peeps. So who can peep? A human being. So a human quality is imposed on non-human, so here personification is used. The sun peeps, यहाँ पर personification यूज़
किया गया है. Then we have the next stanza. Yes, this is child. Child said, bird, oh birdie, birdie, will you pet? Again she asked. फिर से वो पूछती है कि birdie, birdie, will you pet? अब यहाँ पे आप देखेंगे this line, birdie, birdie, will you pet? Repeat it again. So here repetition is used. Then diamond stones in amber and jet, we will string on a necklace fair and fine, to please this pretty bird of mine. अब फिर से चाइल्ड कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास डायमंड, स्टोन्स, एम्बर एंड जेट, ये स्टोन्स हैं मेरे पास. वील स्ट्रिंग ऑन अ नेकलेस फेयर एंड फाइन, हम एक बहुत सुंदर नेकलेस तुम्हारे लिए बनाएंगे. टू प्लीज़ दिस प्रीटी बर्ड ऑफ माइन, इस मेरी प्यारी सी बर्ड को खुश करने के लिए हम एक डायमंड स्टोन, ये स्टोन, एम्बर, jet, diamond, amber, jet, these are the stones from which we can make jewelries. So ये कहती है कि मेरे पास इतने सारे स्टोन्स हैं जिससे हम तुम्हारे लिए एक नेकलेस बनाएंगे जिससे कि तुम बहुत प्यारी लगोगी और ये प्यारी सी बर्ड खुश हो जाएगी. ठीक है. अब यहाँ देखिए and, amber, and. So first of all and repeated, so repetition, and then the sound of a, and a, amber, a and a. यहाँ पर a जो है वो 3 times आया है, 3 time repeat है, so यहाँ पर also alliteration. Then in the next line you can say fair, fine. दोनों जो words हैं वो for से start हैं, for, fair, for, fine. So for letter is repeated. So here also alliteration. Then bird said, bird answered, oh thanks for diamonds and thanks for jet, but there is something daintier yet. So bird कहती है, oh thanks तुम्हारा डायमंड के लिए, thanks तुम्हारा जेट के लिए, यानी जितने भी स्टोन्स तुमने मुझे गिनवाए हैं उन सब के लिए thanks. But इन सब से भी डेंटियर मीन्स स्वीटर, इससे भी ज़्यादा शानदार कुछ मेरे पास है. अ फेदर नेकलेस राउंड एंड राउंड दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 pound. वो कहती है कि मेरे नेक के चारों तरफ जो फेदर्स है वही मेरे लिए नेकलेस है और इसको मैं 1,000 pound में भी सेल नहीं करूँगी. सो यहाँ पर हम लिटरली डिवाइस देखते हैं. थैंक्स 2 times repeat है, so here repetition. Then we can see round is also repeated, so here also repetition. Okay, and बर्ड यहाँ पे क्या कहना चाह रही है? बर्ड कहती है कि ये जो फिज़िकल चीज़ें हैं लाइक डायमंड, जेट्स, जितने भी एम्बर या स्टोन्स हैं, इनकी फ्रीडम के आगे कोई भी कीमत नहीं है. यदि तुम मुझे सुंदर देखना चाहती हो तो मेरी जो नेचुरल ब्यूटी है, यानी मेरे नेक के आसपास जो फेदर्स हैं, पंख हैं, और जो नेचुरली मेरे लिए एक नेकलेस हैं और जो मेरी फ्रीडम के बीच में भी नहीं आएंगे. सो माई फ्रीडम इज़ माई नेकलेस फॉर मी. मेरी फ्रीडम ही मेरे लिए बहुत सुंदर नेकलेस है और जिसको मैं कितने भी पाउंड्स में, यानी जिसको मैं मनी में, पैसे में नहीं बेचूंगी. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द बर्ड. देन दिस चाइल्ड ट्राइज अगेन, फिर से वो कोशिश करती है, फिर बोलती है, ओ बर्डी डोंट यू पैट, विल बाय यू अ डिश ऑफ सिल्वर फ्रेड, अ गोल्डन कप एंड एन आइवरी सीट, एंड कार्पेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट. अब वो कहती है कि यहाँ पे देखिए फिर से ओ बर्डी वॉन्ट यू पैट रिपीट है, सो हियर रेपिटिशन इज़ यूज्ड. और फिर से वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी पेट नहीं बनोगी. विल बाय योर डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट. फ्रेट मीन्स डेकोरेटेड और सिल्वर फ्रेट मीन्स डेकोरेटेड विथ सिल्वर थ्रेड्स. सो वो कहती है कि हम तुम्हारे लिए एक डिश, यानी कि एक बॉल,
एक यूटेंसिल खरीदेंगे जिसमें तुम खाना खाओगी और वो सिल्वर थ्रेड से डेकोरेटेड होगा, यानी कि बहुत ब्यूटीफुल होगा। एंड अ कप एंड एन आइवरी सीट, और तुम्हारे पीने के लिए, पानी पीने के लिए एक गोल्डन कप लिया जाएगा, और तुम्हारे बैठने के लिए आइवरी होता है दैट मेड अप ऑफ एलिफेंट टीथ को हम आइवरी कहते हैं। तो वो कहती है तुम्हारी जो सीट है, तुम्हारे बैठने की जो जगह है, वो हम एलिफेंट टीथ के साथ बनाएंगे। एंड कार्पेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट, और तुम्हारे पैरों के नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे, तुम्हारे पैरों के नीचे बहुत सॉफ्ट एक कारपेट होगा। सो वो उसको जो कंफर्ट की चीज़ें होती हैं, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उनको उसके सामने रखती है, उसे टेम्प्ट करने के लिए, ताकि वो उसकी बात को मान जाए। सो यहाँ पर आप देखेंगे we have this alliteration in the third line, and an ivory. So a word is letter is repeated. So here assonance, and then carpets of इधर आप देखेंगे beneath and feet, E, that vowel sound is repeated, E. So here vowel sound is repeated, so in both the cases we have assonance in this stanza. So assonance is also a part of alliteration. So यदि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे alliteration कहाँ है, तो भी आप यही बताएंगे, here A sound is repeated, or here E vowel is repeated. So in both the cases assonance means alliteration is there. Then actually assonance is a part of alliteration, and here consonance also. There is some difference, but we'll not go for it. So then bird said, can running water be drunk from gold? Can a silver dish the forest hold? A rocking twig is the finest cheer, and the softest paths lie through the air. Goodbye to my lady fair. अब आंसर करती है बर्ड, कहती है कि कैन रनिंग वाटर, अब वो कहती है कि मैं तो रनिंग वाटर यानी जो रिवर है उससे पानी पीती हूँ, तो क्या तुम्हारा ये जो गोल्डन कप है, क्या वो रनिंग वाटर को होल्ड कर सकता है, मीन्स क्या वो रिवर को होल्ड कर सकता है। कैन अ सिल्वर डिश, और ये जो तुम्हारी सिल्वर डेकोरेटेड डिश है, क्या वो फॉरेस्ट को होल्ड कर सकती है, क्योंकि मैं तो पूरे फॉरेस्ट में घूमती हूँ और वहीं पर अपना खाना ढूंढती हूँ, तो क्या वो मेरी इन नेचुरल चीज़ों को क्या तुम्हारा गोल्डन कप या डिश होल्ड कर सकता है। अ रॉकिंग ट्विग मीन्स हेयर शी इज कंपेयरिंग नेचुरल थिंग्स विद दीज कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। वो यहाँ पर ये बताती है कि नेचुरली रहने में मुझे जितना आराम है, मुझे जो फ्रीडम है, सो वहाँ पर मैं अपनी खुद की क्वीन हूँ, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, मुझे कोई बांध नहीं सकता। तो इसीलिए पर तुम्हारे ये जो गोल्डन कप है या सिल्वर डिश है, ये मुझे कंफर्ट ज़रूर देंगे, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इनसे बंध जाऊंगी, मेरी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे वो उसे इसी बात का एहसास करवाती है कि मेरी फ्रीडम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब थर्ड लाइन में वो कहती है अ रॉकिंग ट्विग इज़ द फाइनेस्ट चेयर। रॉकिंग मीन्स मूविंग एंड ट्विग मीन्स अ स्मॉल ब्रांच। ब्रांच के भी आगे का जो हिस्सा होता है बहुत सॉफ्ट वाला जो होता है, जो हिलता रहता है। तो वो कहती है कि ये जो रॉकिंग ट्विग है यही मेरी फाइनेस्ट यानी दुनिया की सबसे फाइन, सबसे अच्छी चेयर है और मुझे इस पर बैठना, इस पर झूलना बहुत पसंद है। एंड द सॉफ्टेस्ट
पाथ्स लाई थ्रू द एयर, और एयर में जब मैं होती हूँ तो वो मेरे लिए सबसे सॉफ्टेस्ट पाथ होता है, सबसे मुलायम पाथ मेरे लिए एयर में होना होता है। यानी कि बर्ड्स के लिए फ्रीडम क्या है? बर्ड्स के लिए फ्रीडम है उनका फ्लाई करना, उनका उड़ना। यदि बर्ड फ्लाई ही नहीं कर सके तो उनकी फ्रीडम उनके लिए नहीं होगी। तो इसीलिए वो कहती है कि जब मैं एयर में होती हूँ तो एयर ही मेरे लिए सबसे सॉफ्टेस्ट पाथ होता है। गुड बाय टू माई लेडी फेयर, और फिर वो उसको गुड बाय कहकर उड़ जाती है। ओके, दिस इज अबाउट द पोएम एंड here you can see goodbye 2 times repeated, so here repetition is there. So what this poet wants to say to us, ये पोइट हमसे क्या कहना चाहता है एंड ये जो पोइम है ये हमें क्या मैसेज देना चाहती है? This poem gives us a message that nothing is as important as freedom, कि कुछ भी चीज़ फ्रीडम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। If someone provides us a golden cage and gives us all the comforts of life, but we cannot do what we like and we cannot go outside, we cannot meet whom we want to like. So students, life is like a hell for us. So यदि कोई हमें, मैंने कहा कि यदि कोई हमें एक केज में बंद कर दे, एक रूम में बंद कर दे और वहाँ पे हमें सभी कंफर्ट्स मिलें, फिर भी हम खुश नहीं होंगे। क्यों खुश नहीं होंगे? क्योंकि हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, जिससे मिलना चाहते हैं उससे नहीं मिल सकते, तो हमें वहाँ पर बहुत बंधा हुआ फील होगा। मीन्स हमें वहाँ पे फ्रीडम फील नहीं होगी। सो इस तरह की लाइफ हमारे लिए हेल हो जाएगी। हेल होता है नर्क, हेल हो जाएगी। सो फ्रीडम इज़ लाइक ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी टू सर्वाइव इन लाइफ। और फ्रीडम क्या है? ऑक्सीजन है। और जब आप उस कमरे से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको पूरा अच्छे से सांस आता है, आप ब्रीद आता है, आप अच्छे से ब्रीदिंग करते हैं, आपको लगता है कि यह सारी ऑक्सीजन तो मुझे अभी मिली है। और ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी टू सर्वाइव इन लाइफ। सो दिस इज़ द रीज़न स्टूडेंट्स दैट बर्डी डज नॉट एक्सेप्ट टू बी अ पेट, कि बर्डी को इतनी सारी कंफर्ट मिलने के बाद भी उसने पेट होना एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज शी कैन नॉट इंजॉय द लाइव मूवमेंट्स ऑफ नेचर एंड हिज wings or flying. So this is about the poem. I hope you understand it. Thank you, students.